Divine blessings. Hello everyone. So today we'll check guidance from universe. What is coming in the month of April? What guidance? What message? What is coming? Whether in terms of love life, in terms of finance, in terms of career, what is coming for all of us in the month of April? So चलिए check करते हैं अप्रैल में क्या stored है हमारे लिए. So hello everyone. A very warm welcome to all of you. Welcome to Divine Instrument, the Search Within. Myself Swati Jaiswal, your friend, guide, and a healer. So without wasting time, let's see what is coming in the month of April for all of us. Before that, if you're new to this channel, don't forget to hit the subscribe button so that we are connected and you don't miss out my upcoming videos. And if you have already subscribed, a very warm welcome to you again. Thank you for all the love, for all the support. So a gentle reminder, this is a complete general reading and a collective reading which we are doing today. So please take what best resonates with you and leave the rest. And in case if you're looking for a one-to-one personal reading, healing or consultation, please feel free to connect with me. The details are already mentioned in the screen and in the description. Okay. So आप देख सकते हो यहाँ पे 3 crystals है. So this is for group number 1, this is for group number 2 and this is for group number 3. Choose any crystal you are intuitively feeling connected to. Okay. And वो आपकी reading होगी. This is for group number 1, this is for group number 2 and this is for group number 3. Connect crystal you are intuitively feeling connected to. Okay, so now I'll start the reading with group number 1. Okay, so now let's see क्या आ रहा है group number 1 के लिए, क्या guidance है for the month of April. So I've already attached the timestamps in the description. Do check out your reading as per your group. Okay, so let's see what is coming for group number 1. Thank you universe for guiding what is coming for group number 1. Thank you. Guide करें क्या message, क्या guidance है in the month of April for group number 1. Okay, so I am keeping these crystals here. और group number 1 के लिए okay, 10 of Pentacles, Queen of Cups, Magician, the Moon and Knight of Cups. Wow, beautiful. So group number 1 आपके लिए जो guidance है ना, amazing, very beautiful cards. So April will be a month where you will be the creator of your destiny. जैसा आप चाहोगे ना अपने लाइफ को, आप अपना लाइफ को वैसे मोड़ सकते हो. इस मंथ में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस मंथ में अपने लाइफ को जैसा आप चाहते हो उसको वैसा लेकर जाने के लिए. बट करना क्या है, करना है आपको एक्शन लेना है. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स है ना उसको पहले बाहर निकालो. ओके, जितने भी सबकॉन्शियस फियर्स है या माइंड में नेगेटिविटी चल रही है, एंजाइटी हो रहा है लाइफ में, स्ट्रेस आ रहा है किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए, कुछ भी जो भी चीज़ें एंजाइटी स्ट्रेस आ रही है लाइफ में, जो भी बार बार रिपीटेड नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना अगर दिमाग में, या बार बार सोच रहे हो क्या करना है नहीं करना है, एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो लाइफ में, उसको पहले बाहर निकालो. ठीक है, first and foremost, that is the first thing you need to do in the month of April. Let go of all the negativity, all the subconscious fears, any repeated thoughts, any repeated negative thoughts which you are getting. You need to let it go, you need to disintegrate that. That is very important. Okay, at the same time in this month ना आपके जो feminine side है, we all have yin and yang energies, right? तो अपने अंदर के जो emotions है ना आपको उसको थोड़ा control करने की ज़रूरत है. Your emotion should not be controlling you in this month. Okay, you should be the one who is taking the lead and is taking care of the emotion. हो सकता है बात पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओ, लग रहा है कि नहीं बात में हर चीज़ में क्यों इमोशनल हो रहे हो, ऐसा फीलिंग आ रहा होगा कि अगर कोई भी कुछ बोल देता है ना तो यू आर एक्टिंग वेरी सॉफ्ट. ठीक है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है. अपने अंदर में इमोशंस का चार्ज लेना सीखो. इस मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने इमोशंस पे काम करो. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ना यहाँ पे भी इवन मुझे एनर्जीज में फील हो रहा है, देयर आर लॉट ऑफ सिंगल्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो. ओके, तो अगर आप सिंगल्स हो ना, अगर आप सिंगल हो
और या रिलेशनशिप में हो, अपने पार्टनर से अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो हाई चांसेस है इस मंथ आपको वो मिले। बट उसके पहले आपने जो खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखे हैं, पहले उसको डिसइंटीग्रेट करो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिसइंटीग्रेट ऑल द ब्लॉकेजेस विच यू हैव क्रिएटेड योर सेल्फ। एंड एट द सेम टाइम अगर फाइनेंसेस की बात करूँ तो फाइनेंसेस के लिए भी यू विल बी गेटिंग अपॉर्चुनिटी, बट यू नीड टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एट द राइट मोमेंट। अभी ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है उसको राइट मोमेंट पे ग्रैब करना है। जब राइट मोमेंट पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करोगे तो वो आपको फाइनेंशियल सक्सेस भी दिख रहा है। अभी इस मंथ में ना जो लोग जॉब्स में हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, फाइनेंसेस में हैं, बिजनेस में हैं, उनको बहुत सक्सेस मिलेगा और आप ना बहुत सारे सक्सेस और जो सेविंग्स जो होती है ना वो कर पाओगे। ठीक है, इस मंथ में इन्वेस्टमेंट पे भी कर ध्यान दे सकते हो। अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हो फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि अप्रैल है तो न्यू ईयर अगेन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू लुक फॉर एनी फाइनेंशियल प्लानिंग और लाइक हाउ यू कैन प्लान योर सेविंग्स, सो दिस इज़ द राइट मंथ टू स्टार्ट, सो दैट आप अपने इंटायर ईयर का फाइनेंशियल प्लानिंग अभी से सेट करो, विच विल एक्चुअली हेल्प यू इन सेविंग मोर। ओके, एट द सेम टाइम इस मंथ में बहुत सक्सेस मिलने वाली है। अच्छे से यूज़ करो, एनर्जी को चैनलाइज करो और अपने जो भी विशेस हैं, गोल्स हैं, उसको मैनिफेस्ट करो। अपनी एनर्जी पे काम करो, प्रपोजल्स मिल सकते हैं। और अगर अपने नेगेटिव ब्लॉकेजेस को ओवरकम कर रहे हो तो जो सिंगल है या जो रिलेशनशिप में है उनको प्रपोजल तो मिलेंगे ही, और साथ साथ में रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो बहुत हाई पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है इसमें, यहाँ पे और क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। Thank you, universe. What is coming for group number 1? Wow. See, the creator, sharing, rightness. Wow, beautiful channel message. So now you can see, as I said, you are the creator, right? You are the creator. तो अभी क्या है ना, आप जैसा कार्ड्स में पहले भी यहाँ पे दिख रहे हैं, चैनल मैसेज में भी वही दिख रहा है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। तो इस मंथ में ना आप अपने लाइफ को जैसा लेकर जाना चाहोगे आप वो ऐसा क्रिएट कर सकते हो। एट द सेम टाइम यू नीड टू बी अपने कर्मास पे फोकस रखना है, कर्मास पे ध्यान देना है और शेयर करना है अपने नॉलेज को, अपने जो भी चीज़ है ना, अपने मतलब अच्छे कर्म करना शुरू करो। शेयरिंग करने से ना यू एक्चुअली क्रिएट अ lots of positive karma which actually comes back to you. Again, rightness is here. So as I said, जैसे ही आपकी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस आप उसको निकालते हो तो आपको फल मिलना शुरू होता है। सो वॉट एवर वर्क यू हैव डन, वॉट एवर एफर्ट्स यू हैव गिवन, इट इज़ टाइम फॉर यू, यू विल बी हार्वेस्टिंग दोज। आपने जितनी भी मेहनत करी थी अब आपको उसका फल मिलने वाला है। ठीक है, तो ये टाइम है ना, उसको राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करो। एंड ग्रुप नंबर 1, दिस इज गोना बी अ सुपर सक्सेसफुल मंथ फॉर you if you are using it into the right direction. So I hope this reading helps. So group number 1, if this reading has resonated, don't forget to subscribe and to comment I claim, to claim the blessings, to claim the energy. Okay, so now we'll move to group number 2 and let's see what we have for group number 2. Group number 2, let's see what we have for you. Thank you, universe, for guiding what is coming for group number 2. Thank you, universe, for guiding what is coming for group number 2. Okay, 6 of Wands, the Hermit, Temperance, 10 of Cups, the High Priestess. Beautiful, amazing cards. Okay, so group number 2, this month now for you, this will be a month where you need to listen to your intuition. बहुत सारा थोड़ा काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, और वो जो काम करने की ज़रूरत है ना वो बाहर नहीं, अंदर करने की ज़रूरत है। ठीक है, दिस इज़ अ मंथ फॉर यू वेयर यू एक्चुअली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ओके, सो एज इन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर थॉट प्रोसेस। ओके, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो, ठीक है, लाइफ में डायरेक्शन लेस फील कर रहे हो,
कि नहीं अभी डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, कि वेदर कहाँ पर कहीं पे जा भी रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में है या नहीं है, उसके लिए किसी की हेल्प लेने शुरू करो या तो अपने खुद में सेल्फ डिस्कवरी मोड पर जाओ। टेक सम टाइम टू मेडिटेट, मेडिटेशन स्टार्ट करो, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। टेक सम टाइम, दुनिया के शोर शराबे से दूर जाके अपने अंदर थोड़ा, अपने लिए थोड़ा समय निकालो। ये मंथ खुद को देने के लिए है, ठीक है। ये मंथ में आपको खुद अपने ऊपर काम करना है, जहाँ पे यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड यू आर टेकिंग सम टाइम टू रियलाइज व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, व्हाट इज दैट थिंग विच विल मेक यू हैप्पी। ओके, सो अपने अंदर की चीज़ों पे काम करो एंड स्टार्ट क्रिएटिंग अ बैलेंस। एट टाइम्स व्हाट हैपेंस ना, काम में इतना फोकस हो जाते हो कि यू आर जस्ट नेग्लेक्टिंग योर सेल्फ, डोंट डू दैट। ओके, एट द सेम टाइम दिस मंथ में ना आपको बहुत ही एनर्जी फील होगी, यू विल फील लाइक यू आर फुल ऑफ एनर्जी, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो उसको राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करो और अपने गोल्स को अचीव करो। अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे आते हुए, हो सकता है 2 से 3 अपॉर्चुनिटी आए जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओ। उस समय क्या करना है, अपने इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है। जिस पे आपका इंट्यूशन, आपका दिल जिस बात पे आपको बोले कि नहीं ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है, उस अपॉर्चुनिटी के साथ जाना। बिकॉज लिसन टू योर इंट्यूशन एंड द मोमेंट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस। बिकॉज सिर्फ ऐसा नहीं हो कि सिर्फ अपने वर्क लाइफ में ही इन्वॉल्व हो जाओ या सिर्फ अपने रिलेशनशिप में ही इन्वॉल्व हो जाओ। हर चीज़ में एक हारमोनी, एक बैलेंस क्रिएट करो। और ये सारी चीज़ें जब करोगे ना तो एंड बाय एंड ऑफ द मंथ में ना यू विल फील लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। क्यों? सो बाय एंड ऑफ द मंथ ना यू विल फील कि यू हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग। बिकॉज बहुत ही हारमनी फील करोगे आप अपने लाइफ में, हारमनी फील करोगे, सक्सेस फील करोगे, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, सेलिब्रेशन हो सकता है फैमिली में, कहीं जा सकते हो घूमने। बिकॉज ये जो होगा ना आपको लगेगा कि यार बहुत भाग लिया, अब रुकने की ज़रूरत है। अगर आप सिंगल हो सकता है ना कि अभी नाउ यू विल फील नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी टू settle down. Okay, so even if you are planning to settle down, a self discovery is required where you are actually taking some time and you are realizing what are your goals, what exactly do you want in your life and how you can achieve that in your life. So this will be a month where you are actually working on your thoughts, your emotions, and more on your own energy. Okay, as in what exactly you want from the life and what not. Okay, so now let's see what channel message we have for group number 2. Thank you for guiding what channel message we have for group number 2. Friendliness. Turning in. Consciousness. Amazing. See, अगर आप ध्यान से देखो, ऑल द कार्ड्स आर सो इंटरकनेक्टेड, राइट। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, अपने टाइम फ्रेंडलीनेस, लाइक यू नीड टू बी फ्रेंडली विथ योर सेल्फ, विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, सो दैट यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ बैलेंस। एट द सेम टाइम कॉन्शियसनेस एंड टर्निंग इन, वेयर एज आई सेड जैसे कार्ड्स में दिख रहे हैं, अपने सेल्फ डिस्कवरी मोड पे जाओ, अपने अंदर टर्न, अपने अंदर जाओ, अपने अंदर टेक टेक सम टाइम, टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ। स्टार्ट मेडिटेटिंग, मेडिटेशन करना शुरू करो या कुछ सोचो कि लाइफ में क्या चाहिए, अपने आप से बातें करना शुरू करो। अपने सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्निंग इन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक जहाँ पे बाहर किसी को जाके ब्लेम नहीं कर रहे हो, बाहर किसी से नहीं पूछ रहे हो, अपने आप से पूछ रहे हो कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या अपने लाइफ में, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट इन योर लाइफ। एट द सेम टाइम स्टार्ट बीइंग कॉन्शियस, स्टार्ट बीइंग कॉन्शियस ऑफ योर एक्शंस। बिकॉज जितने जैसे अपने कॉन्शियसनेस पे काम करना शुरू करोगे, आपका इंट्यूशन शार्प होगा। और जैसे मैंने बोला, जब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जब आपका इंट्यूशन शार्प होगा तो आप जो डिसीजन है ना वो इंस्टेंटली ले पाओगे। अगर कॉन्शियस नहीं रहोगे, इंट्यूशन काम नहीं करेगा, तो डिसीजन लेने में दिक्कतें आएंगी, ठीक है। सो ऑल कार्ड्स आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड एंड ट्रस्ट मी, जस्ट वर्क ऑन योर इनर सेल्फ दिस मंथ एंड you will see miracles in your life. Okay, so I hope this reading helps pile number 2, and if this reading has resonated, do drop a heart and type I claim to claim the blessings. So now we'll move to pile number 3. Hello group number 3, let's see what we have for you. So thank you universe for guiding what is coming for group number 3.
The World, The Devil, Wheel of Fortune, Eight of Pentacles, the Sun. Wow. Okay, group number 3. बहुत सारे मेजर अरकानास आए हैं यहाँ पे, ठीक है. Very important month for you to learn your lessons and to make necessary changes in your life. Okay, so if you are someone who is actually involved in a lot of negative activities, negative habits, negative thought patterns, कुछ भी नेगेटिविटी अगर लाइफ में है उसको लेट गो करो. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस मंथ में, क्योंकि अगर नेगेटिव अटैचमेंट्स है लाइफ में ना, चाहे वो नेगेटिव कंपनी हो, नेगेटिव लोग हैं लाइफ में, या आप ही खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, आप ही की कोई हैबिट्स हैं जो बहुत ही नेगेटिव है, एडिक्शन है लाइफ में, किसी भी चीज़ का अननेसेसरी एडिक्शन. सी एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड. ओके, इवन वॉट एवर यू आर डूइंग, अगर कोई भी चीज़ एक्सेस में होता है ना तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है लाइफ में. ओके, सो इन केस इफ यू आर समवन हु इज ओवर अडिक्टेड टू समथिंग, you need to stop doing it right away. This is the guidance for you for this particular month, because this is a month for you where you actually need to learn your lessons. Okay, so जैसे जैसे अपने negative attachments को let go करोगे ना, आपके लाइफ में चेंजेस आना शुरू होंगे. You will start experiencing change. Okay, and at the same time you need to work. Okay, in case if you want to achieve your financial goals, ठीक है, आप मेहनत करते हो अपने लाइफ में, बट वो मेहनत सफिशिएंट उतना नहीं है, और मेहनत करने की ज़रूरत है. जैसे जैसे और मेहनत करना शुरू करोगे, आपके लाइफ में यू विल सी अ बिग टर्न, एंड देन यू विल स्टार्ट रिपिंग द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क. हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ. तो आपने जितनी मेहनत करी है, जितनी मेहनत करोगे, वो आपको उसका रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा. बट जस्ट कीप अ नोट ऑफ इट. वेरी इंपॉर्टेंट, लेट गो ऑफ द नेगेटिव अटैचमेंट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में. तो अपने नेगेटिव अटैचमेंट्स को, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, हैबिट्स हैं, एडिक्शन है, या कुछ भी है, या नेगेटिव लोग के अगर संकट में बहुत ज़्यादा रह रहे हो, उसको हटाओ अपने लाइफ से. ठीक है, साथ साथ में हो सकता है ट्रैवलिंग के भी चांसेस होए, ट्रैवलिंग की ऑप्शंस आ सकती है, बट अगर नेगेटिविटी रहेगी तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी. So everything is interconnected. Let go of the negativity, learn your lessons, and you will see a lot of positive changes in your life. यह होता है ना लाइफ का, वो घूमेगा और आपको दिखेगा लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हुए. ठीक है, you will see miracles in your life and you will actually reap the fruits of your success. Okay, so now let's see what channel message we have for group number 3. Thank you for guiding what channel message we have for group number 3. Abundance, rebirth, awareness. Beautiful. So now group number 3, even if you see, if you look at the cards, very connectivity. Again भी यहाँ पे connectivity कितनी दिख रही है कि जैसे जैसे आप क्या करोगे ना, आप अपने negative attachments को छोड़ रहे हो ना, तो वो कहीं ना कहीं एक आपका rebirth होगा, right? Because once you are learning your lessons and you are changing yourself, you are re-evolving yourself, right? You are transforming yourself, so that is a rebirth in the process. Okay, at the same time, the moment you are doing it, abundance is here. You will be reaping the fruits of your success, as I said, because the moment you are putting a lot of efforts, whatever hard work you are doing, you will be getting the fruit of it in the form of abundance, in the form of money. Okay, so start being aware of your actions. Awareness is required for you, okay, in this particular month. So start being aware of your actions, start being aware of your thought forms. Don't do anything which is negative. Be aware of the law of karma, follow law of karma, work on your energy and manifest your goals, manifest your dreams, because this will be a month जहाँ पे आपको अपने lessons को learn करने की ज़रूरत है, अपने life में transformation लाने की ज़रूरत है. This is gonna be a month full of transformation where you actually you will be reaping fruits of your success once you are working on yourself, once you are letting go the negativity, once you are transforming yourselves into the better version of yourself. Okay, so I hope this reading helps file number 3, and if this reading has resonated with you, do drop a heart and type I claim to claim the blessings. So this was all the guidance, all the blessings, all the readings which we had for today, and I hope this reading helps all of you. Again, a gentle reminder, this was a complete collective and a general reading and might not resonate with everyone, so please take what best resonates with you and leave the rest. And don't forget to subscribe, and don't forget to like and share the video if you have not yet.
So stay tuned, stay connected. I'll see you soon in my next video. Till then, take care. God bless.